and commerce classes, 9th standard. We have completed 2 units. Today we are going to do 1.3, third unit, 1.3 unit. Have you ever seen? It's a small poem, but a poem is very humorous, a laughter type poem, very humorous poem. And whoever is written the poem, he is trying to tell us about the homographs. Homographs are the words with same spellings but has different meanings. इसके स्पेलिंग सेम होते हैं वर्ड्स के, लेकिन इसका मीनिंग अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल फेयर, ओके, स्पेलिंग्स बहुत अलग सेम रहेगी लेकिन उसका मीनिंग कंप्लीट अलग रहेगा, और ये इंग्लिश में होता है. इन दिस कम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो इट्स कॉल्ड अ पन. ओके, फिगर ऑफ स्पीच इसको पन बोलते हैं. ठीक है. So this is a poem which is very humorous. The poet is trying to tell us when we use the words in a wrong place, और किस तरीके से वो हंसी का पात्र जैसे बन जाता है, ह्यूमरस बन जाता है. जब हम वो मीनिंग सेम स्पेलिंग होता है और मीनिंग अलग है, लेकिन वो वर्ड हम किसी और सेंटेंस में डाल देते हैं, तो वो किस तरीके से ह्यूमरस, हंसने का जैसा बन जाता है, लाफ्टर बन जाता है. ह्यूमरस पोयम है, बहुत ही ह्यूमरस पोयम है. Let us see what the poet is trying to say. Okay. First, I will read the appreciation. Then I will go to the poem. The poem "Have You Ever Seen?" Refer to the page 13. Refer to your page textbook 13. The poem "Have You Ever Seen?" is a brain teaser that uses pun. Many words in English language have more than one meaning. There are many words in English which has more than one meaning. बहुत ही ज़्यादा meanings होते हैं. जब एक word होता है उसके 2-3 अलग-अलग meanings भी होते हैं. हमको पता रहना चाहिए कि वो word कहाँ पर use किया जाना चाहिए. The poet has created an amusing effect by playing around with such words. Now in this poem, the poet has done something humorous. उन्होंने ये दिखाया है कि जब हम कुछ सेंटेंसेस में इस तरीके से वर्ड्स होते हैं जो अलग भी मीनिंग दिखाता है, तो किस तरीके से वो फनी टाइप हो जाते हैं. In the first stanza, the poet asked as if have ever seen a bedsheet on a riverbed or a hair on a hammer's head. He asked if the foot of the mountain has any toes, or if a garden hose comes with a pair. Here the words bed, head, foot and hose have been used in different sense from their literal common meanings. In the second stanza, the poet asked if the eye of a needle can wink, or why the wings of a building can't fly. Here the eye is a tiny hole of a needle through which we pass a thread, while the wing is a part of a building that is subordinate is the main structure. The poet then asked us if the ribs of a parasol can be tickled, or if we can open the trunk of a tree. We cannot tickle the ribs of a parasol because they are not the same as the ribs of a human, and we cannot open the tree trunk because it is not the trunk in which we store our things. In the third stanza, the poet asks if the teeth of a rake would bite and if the hands of a clock have left or right side. Here the teeth of a hand-held rake are used to collect fallen leaves and are made up of wood or steel, while the hands of a clock are the ones that show time. He then asks us if a garden plot can be deep and dark and wonders about the sound of its birch bark. Here the garden plot is piece of a land and the bark is not a dog bark but refers to the bark of a tree. Now let us see what the poem says. Okay? किस तरीके से उसने इंग्लिश के वर्ड्स अलग-अलग यूज किए हैं. पेज नंबर 13. Have you ever seen? कहीं देखा है क्या आपने? Is asking. Okay? By using these words. Have you ever seen a ship on a riverbed? हम बोलते हैं कि रिवर में जो उसका नीचे का जो स्पेस होता है, लैंड होता है, उसको हम रिवर बेड बोलते हैं, और हम जो सोते हैं उसको भी हम बेड बोलते हैं. तो हम जो सोते हैं वो बेड पे हम बेडशीट बिछाते हैं. We cover with the bedsheet. And the poet, and we call the river bed also near the river. So he is asking, have you ever seen like how we cover the bedsheet on the bed in our house? Did you see near the river also on that bed covering the sheet? रिवर बेड पे भी तुमने कभी शीट देखा है क्या? बेडशीट देखी है क्या? He is asking because there are different meanings. Or a single hair from a hammer's head. Hammer's head, single hair.
हम हैमर पे हम बोलते हैं कि बहुत सारे हेड है, उसका हेड है। हेड मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर का भाग हम हेड बोलते हैं। जैसे कि कोई ऐसा एक पोल है और उसका हेड बोलते हैं, हेड ऑफ द पोल, और हम अपने सर पे भी हेड बोलते हैं। तो वो जो पोल है उसके ऊपर बाल है क्या, हमारे हेड पे बाल है। सो ही इज कंपेयरिंग। Has the foot of a mountain any toes? We say that कि foot of the mountain, mountains के नीचे की तरफ का जो हिस्सा होता है हम लोग foot of the mountains बोलते हैं, और हम जो खड़े हैं, हम जो चलते हैं, हम उसको भी foot बोलते हैं। तो he is asking really the mountain has the foot whatever we say and it has a toes, हमको foot है, हम toes है, toes मतलब उंगलियां जो हमारे पैर की होती है, तो हम उसके हिसाब से हम चलते हैं। तो माउंटेन को भी हम toes बोलते हैं, फुट बोलते हैं। तो ये भी इसके पास भी वो चलने की काबिल है क्या, ही इज आस्किंग। दिस मेकिंग वेरी ह्यूमरस, बट माउंटेन्स कैन नॉट वॉक, ओके, बट वी कॉल इट। रिवर बेड में हम बेडशीट नहीं बिछाते, लेकिन वी कॉल द रिवर बेड। एंड इज देयर अ पेयर ऑफ गार्डन होज? नाउ इन अ गार्डन वी यूज अ फ्लेक्सिबल ट्यूब। फ्लेक्सिबल ट्यूब मतलब हम गार्डन में जो भी टूल्स यूज करते हैं, क्लीनिंग ऑफ द लीव्स एंड ऑल, तो उसको हम एक ट्यूब बोलेंगे। पानी डालने के लिए हम कोई ट्यूब, वाटर ट्यूब यूज करते हैं। और ह्यूमन बीइंग के लिए यहाँ पे होज मतलब ये पेयर ऑफ स्टॉकिंग्स और टाइज। स्टॉकिंग मींस लाइक व्हाट वी वेयर। तो इज आस्किंग कि इज देयर अ पेयर ऑफ गार्डन होज? गार्डन में जो यूज करते हैं ट्यूब, वो ह्यूमन बीइंग्स वही पहनता है क्या? तो इस तरीके से वो ह्यूमरस बना रहा है। फर्स्ट पैराग्राफ वी हैव कंप्लीटेड। सेकंड, does the needle ever wink its eye? You have seen a needle, और नीडल का जो हम जहाँ पे थ्रेड डालते हैं वो होल को हम आंख, आई बोलते हैं, ओके। और आईज आर विद अस आल्सो, ह्यूमन बीइंग आल्सो हैव आईज। तो हम आईज विंक करते हैं। विंक मतलब आंख को झपकना। तो ये पूछ रहा है कि जैसे ह्यूमन बीइंग आई को झपकता है, वैसे नीडल भी अपनी आई झपकती है क्या? नो, बट वी कॉल इट, इट्स बिकमिंग ह्यूमरस। Why doesn't the wing of a building fly? जैसे बिल्डिंग के जो विंग्स होते हैं, ए विंग, बी विंग, ऐसे ही होता है ना बिल्डिंग्स में। ए विंग में रहते हैं, बी विंग में रहते हैं। तो विंग्स क्या होते हैं? फेदर्स, फ्लाई करने के लिए। तो ही इज आस्किंग बिल्डिंग के विंग्स जो है वो भी फ्लाई होते हैं क्या? तुमने देखा है क्या ऐसे होते हुए? ही इज आस्किंग, ओके, इट्स अ रेटोरिकल क्वेश्चंस। कैन यू टिकल द रिब्स ऑफ ए पैरासोल? नाउ टिकल मतलब गुदगुदी करना, ओके। रिब्स मतलब फसलियां जो होती है, ओके, ह्यूमन बीइंग की फसलियां होती है। और पैरासोल मतलब यहाँ पर अम्ब्रेला, ओके। यहाँ पे दो मीनिंग्स है, रिब्स के दो मीनिंग्स हो रहे हैं, टिकल के दो मीनिंग्स हो रहे हैं। नाउ व्हाट इज आस्किंग? पैरासोल मतलब अम्ब्रेला। नाउ व्हाट इज सेइंग? यू हैव सीन अम्ब्रेला विद द रिब्स, है ना, अंदर से वो पूरे रॉड्स होते हैं उसके, और वो अम्ब्रेला होता है। तो ही इज आस्किंग कि हम अम्ब्रेला को टिकलिंग कर सकते हैं क्या? टिकलिंग मतलब गुदगुदी कर सकते हैं क्या उसके फसलियों में? तो उसको गुदगुदी होगी क्या? लेकिन गुदगुदी उसको नहीं होती है, टिकलिंग ह्यूमन बीइंग को होता है, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स हैव द रिब्स, ओके। और ओपन द ट्रंक ऑफ अ ट्री एट ऑल। नाउ हियर इज सेइंग कैन वी ओपन द ट्रंक ऑफ द ट्री? ट्रंक ऑफ द ट्री मतलब ट्री का जो भाग होता है, ओके, जो चौड़ाई में होता है, उसको हम ट्रंक बोलते हैं। तो और एक ट्रंक किसको बोलते हैं? और लास्ट सूटकेस। पहले के जमाने के लोग देखो ट्रंक यूज करते थे अपनी चीजें रखने के लिए। सो ही सेइंग कैन वी ओपन इट? हम ट्री का जो ट्रंक है वो खोल सकते हैं क्या, जैसे हम सूटकेस का खोल सकते हैं? तो यहाँ पे सेम स्पेलिंग का वर्ड है, लेकिन इसके अलग अलग मीनिंग्स है। बट जब वो हम वर्ड कहीं और यूज कर रहे हैं, देन इट बिकम्स वेरी ह्यूमरस, वेरी कॉमेडी टाइप। थर्ड पैराग्राफ, आर द टीथ ऑफ अ रेक एवर गोइंग टू बाइट? रेक इज अ गार्डन टूल। गार्डन टूल मतलब गार्डन में जो सूखे हुए पत्ते गिरते हैं तो उसको कलेक्ट करने के लिए वो यूज किया जाता है, ओके। यू मस्ट हैव सीन अ रॉड विद ऑल दोस टीथ, है ना, ऐसा लगा है, ऐसा रहते हैं रॉड्स टाइप। और यहाँ पे पोएट क्या बोल रहा है कि टीथ जो वो टूल के होते हैं वो बाइट करते हैं क्या? लेकिन बाइटिंग ऑफ अ टीथ ह्यूमन बीइंग्स, इंसान के टीथ बाइट करते हैं, लेकिन वो बाइट नहीं करते। Are the teeth of a rake ever going to bite? Have the hands of a clock any left or right? We have hands. We have left hand and we have right hand. And same way we use it for the clock. क्लॉक का भी हम राइट हैंड और क्लॉक को भी हैंड्स होते हैं, तो उसका भी राइट और लेफ्ट होता है क्या? ही आस्किंग।
Can the garden plot be deep and dark? Here plot means a piece of land, or another word plot means a wicked plan, a evil plan, मतलब किसी के खिलाफ कोई प्लानिंग करना, ओके, उसको भी प्लॉट बोला जाता है. तो ही इज आस्किंग कैन द गार्डन प्लॉट बी डीप एंड डार्क? गार्डन में क्या कोई साजिश हो सकती है? तो ही इज आस्किंग, क्योंकि यहाँ पे प्लॉट के दो अलग मीनिंग्स है, एंड विच इज मेकिंग वेरी ह्यूमरस. एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ द बर्च बार्क? नाउ सेइंग कि यहाँ पे बर्च बार्क मीन्स बर्च इज अ ट्री और बार्क मीन्स ट्री का पार्ट, ओके, और बार्किंग मीन्स द डॉग बार्क. तो ही सेइंग कि वो ट्री का बार्क भोंक सकता है क्या, जैसे कुत्ता भोंकता है. तो यहाँ पे बार्क इज देयर इज अ स्पेलिंग, सेम स्पेलिंग वर्ड बट इट हैज अ डिफरेंट मीनिंग. सो द पोएट इज मेकिंग कंप्लीटली ह्यूमरस. हम भी कभी कभी जैसे बात करते वक्त जब कोई मीनिंग या वर्ड आता है तो हम वो वर्ड को कहीं और लगा देते हैं और वो पूरा सेंटेंस एकदम ह्यूमरस बन जाता है, वेरी लाफ्टर जैसा बन जाता है. तो इन दिस वे, सेम वे, द पोएट इज ऑल्सो ट्राइंग टू टेल अस that in English there are different there are same words with different meanings, and when we do not put it in onto that correct sentences it will go somewhere else, कहीं और इसका मीनिंग हमको पता चलेगा और वो पूरा ह्यूमरस मतलब बहुत ही कॉमेडी टाइप हो जाएगा. So in this way the poet is trying to tell us the poem in a humorous way. Okay, this is a very humorous poem, just read it. राइमिंग स्कीम है ए ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ. एंड जस्ट मार्क द राइमिंग वर्ड्स: बेड, हेड, टोज, होज, आई फ्लाई, पैरासोल ऑल, बाइट राइट, डार्क बार्क. ओके, दिस. सो जस्ट रीड द पोएम and enjoy the poem very well. So in this way we have completed the poem. Just you remember about the homographs. Just remember the homograph, words with the same spellings but has different meanings. So you can frame as many sentences as you want with this. You can just, there are many words, you can practice it. Okay, it will come in your grammar. So read the poem, keep safe, take care, have a nice day.